Hello students, welcome to the channel. Today we are going to start chapter 2 that is acid, bases and salts. आज हम पढ़ेंगे acid, base और salt के बारे में. So before starting this, I want to tell you that how we classify the substance as acid, base and salt. Students, here we can see there are two main sources. We have two main sources, two main source of chemical substance. मीन्स केमिकल सब्सटेंस हमें दो सोर्स से मिल सकते थे. फर्स्ट दैट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट. सेकेंड सेकेंड सोर्स क्या हो सकता था किसी भी केमिकल सब्सटेंस का मिलने का? दिस इज मिनरल्स एंड रॉक्स, right? So here we have two main source. First is animal or plant. Second, that is minerals and rocks. So here, what we observe, the chemical substances which are obtained from animals and plants like living organism, animal, they are called organic compound. उन्हें हमें क्या दिया, नाम दिया organic compounds. The chemical substance which is obtained from animals and plants are called organic compounds, right? Whereas those which are obtained from minerals and rocks, कुछ ऐसे भी chemical substance थे जो mineral और rock से मिले. The substance we called, the chemical substance we call them inorganic compounds. उनको हमने क्या नाम दिया? Inorganic compounds, right? ठीक है. These which are present in foodstuffs, जो हमारे खाने में, right? Number of other material that we use in everyday life like washing soda, lime, right? तो यहां से हमने क्या किया, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, इनऑर्गेनिक, including a large number of organic compound was on the basis of their taste. हमने क्या किया, उनको उनके टेस्ट के बिहाव पर तीन पार्ट में कैटेगराइज किया. ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेस्ट, these organic compounds including this organic and inorganic, according to their taste we divide them into first acids, second that is base and third that is salt. ठीक है, हमने किसके बिहाव पर, टेस्ट के बिहाव पर उनको क्या किया, कैटेगराइज किया, राइट. नाउ हियर let's here take the classification. Now here, what are acids? Acids according to the taste are the substance which have sour taste, right? Which have sour taste, जो खट्टे होते हैं, sour taste के होते हैं, right? उनको हमने क्या नाम दिया, they are called acids. वो क्या बन गए हमारे acids, right? Acid, that is a word taken from, ये जो acid word था वो कहाँ से लिया गया था, it is taken from acidus, right? Which means ये हमारा एक लैटिन वर्ड था, राइट? लैटिन वर्ड जिसका नाम क्या था, एसिडस, और इसका नाम था सौर. इसका मतलब क्या था, सौर, राइट? फ्यू एग्जाम्पल्स, लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स. ठीक है, एसिड्स होते क्या हैं? सो हियर फर्स्ट लेमन, विनेगर, टैमरिंड, टोमेटो, these all are what, acids. अब इसमें लेमन में कौन सा एसिड होता है, लेमन में याद रखो कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड,
याद रखना, जो भी खट्टी खट्टी चीजें होती हैं, है ना, तो उनमें क्या याद रखेंगे, मेनली जो ईटन होती है उनको क्या बोलते हैं, सिट्रिक एसिड, नाम देते हैं सिट्रिक एसिड का। नेक्स्ट, विनेगर, विनेगर में एसिड होता है एसिटिक एसिड। थर्ड, टार्टरिक एसिड, टैमरिन से याद रखना, टी टी, टैमरिन से टार्टरिक एसिड, राइट। नेक्स्ट, टोमेटो, लास्ट में ओ आ रहा है, लास्ट में ये ओ आ रहा है, इसी से याद रखेंगे कौन सा एसिड है ये, ऑक्सैलिक एसिड, राइट। लेमन, सिट्रिक एसिड, विनेगर, एसिटिक एसिड, टार्टरिक टैमरिन एसिड में होता है, और ऑक्सैलिक एसिड में किस में होता है बेटा, टोमेटो में, राइट। सो हियर ऑन द बेसिस ऑफ दिस दैट दे आर सोड वी कैटेगराइज देम, राइट। हमने क्या बोला, ये सारे के सारे कैसे होंगे, हमारे एसिड्स होंगे। नाउ, नाउ हियर what are bases? Bases are the substance which have bitter in taste, जो कड़वे होते हैं, ठीक है। Let's take some few example here. We can take washing soda, baking soda, right? ये सारे के सारे कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, ये बीटर होते हैं। कैन यू सी दिस ऑल, ये सारे के सारे जो तीनों हैं ये क्या होते हैं, हमारे बिटर इन टेस्ट। ओके, नाउ, now here we will talk about the salt later, right? Now here you can check that we have three lights. Can you see this, three lights, right? Now the question arises that how to test that given substance, कैसे पता चलेगा कि एसिड है या बेस है, right? We shall discuss this test in the now this video, right? In this chapter we will discuss the characteristics, हम पढ़ेंगे क्या क्या characteristics होती हैं, right? On the basis of their smell, on the nature. The nature of salt is found by the certain test. अब salt कैसे पता चलता है, उसके test से, right? Clear? Now here, can you see these lights? Three lights जो दिखाई दे रही हैं आपको. So each of these three of the signals indicate the activity expected from the people. आप जो लोग हैं वो इन तीनों लाइट से कुछ ना कुछ सीखते हैं, इंडिकेट करती है ये चीजें, क्या, टू स्टॉप, रुक जाना चाहिए, टू बी रेडी, चलना चाहिए, टू गो, रेडी मीन्स तैयार होना चाहिए, टू गो, चले जाना चाहिए, ठीक है। तो तीनों कलर इंडिकेट करते हैं। सो एज द रोड रूल आर इंडिकेटेड बाय ट्रैफिक सिग्नल, जैसे रोड के रूल कौन बताता है, ट्रैफिक सिग्नल। सिमिलरली एसिड एंड बेसिस, एसिड और बेसिस को भी हमने क्या किया, कैटेगराइज किया, उनको कैटेगराइज किया, हमने कहा वो भी इंडिकेट किए जा सकते हैं। अभी टेस्ट करके थोड़ी ना हम हर चीज को देख सकते हैं, है ना, they are harmful also. So here we are saying that we have some substance which can detect that they are acid or base. There are many substances which show one color in the acidic medium and different color in the basic medium. So such substances are called indicators. ऐसे जो substance होते हैं वो क्या होते हैं, indicator. So now what is the first indicator we have, that is litmus. Litmus, it is a natural indicator. कैसा होता है ये, नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है। द एसिड एंड बेसिक नेचर ऑफ अ कंपाउंड कैन बी इंडिकेटेड बाय सम नेचुरल एज वेल एज केमिकल सब्सटेंसेस, है ना। हम कह रहे हैं कि एसिड और बेसिक नेचर को इंडिकेट किया जा सकता है, उनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। नाउ वी विल टॉक ऑन दिस, द नेचुरल इंडिकेटर एंड सिंथेटिक। सो हियर नेचुरल मीन्स जो नेचर से मिले, विच इज फाउंड इन नेचर इन द प्लांट्स, whereas we have some indicators which are synthesized in the laboratory, industry में जो मिलते हैं उनको क्या बोल देते हैं हम, synthetic, right? So let's talk about first litmus as an indicator. Now here litmus, what we talk, क्या बोलेंगे इसमें, it's a solution type which is a purple color dye. ये क्या होते हैं, एक पर्पल कलर की डाई होती है, ठीक है। नेचुरल इंडिकेटर होता है, किस चीज के लिए यूज होता है, टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ सब्सटेंस, ये पता लगाने के लिए कि एसिड है या बेस है। नाउ हाउ इट ऑब्टेन, कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ से निकलेगा, ये हमें प्लांट से मिलता है, लाइकेन से। किससे मिलता है, लाइकेन से, राइट। लिटमस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कहाँ से, लाइकेन से। नाउ हियर algae provides food and fungus provide shelter. Here lichen is a substance which is, here we can extract
from this, right? Lichen, a plant belonging to the division Thallophyta. You know, we have divided the plants. तो Thallophyta के अंदर जो plant आता है उसको क्या बोलते हैं? Lichens बोलते हैं. Now, what is litmus? Litmus, it is a blue color dye. Purple color dye. Sorry for this. Here we say that lichen, that is a purple dye. कैसी होती है? पर्पल डाई होती है. एक्सट्रैक्टेड, कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं इसको? कहाँ से? लाइकन प्लांट से. ठीक है, इट्स ए प्लांट. ठीक है, नाउ वी से दैट लाइकन दैट इज अ पार्ट ऑफ थैलोफाइटा. ये किसका पार्ट होता है? थैलोफाइटा को. इट इज मोस्टली यूज्ड इन द लेबोरेटरी. कहाँ यूज करते हैं? लेबोरेटरी में. हाउ इज दिस सॉल्यूशन? इट्स ए न्यूट्रल सॉल्यूशन. कैसा सॉल्यूशन होता है ये? न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है. ठीक है, नाउ इट इज पर्पल इन कलर. हमने कहा कि किस कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है. नाउ हाउ टू डिटेक्ट, कैसे पता चलेगा मैम कि एसिड है या बेस है? सो लेट्स डू सम एग्जांपल. टेक सम एग्जांपल्स हियर. हियर वी आर टेकिंग इंडिकेटर्स. वी हैव two flask here, right? So in this what we do, we dip this paper. So have you seen this before? आपको दिखा कि ये यहाँ पर हमने ये जो लिटमस लिया था वो, कैन यू सी दिस? ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? पेपर है ना, ये पेपर है. तो ये बोलते हैं लिटमस पेपर. एक्सट्रैक्ट करके इसको इसमें डाल देते हैं. ठीक है, सो हियर वी आर यूजिंग दिस पेपर in finding that whether these two solutions are acidic or basic, right? To test whether the given substance is acid or base, we take here 1 or 2 milliliter of distilled water, right? Now here what we are doing, यहाँ पर हमने क्या किया? सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या किया? डिप किया पेपर को. कौन सा पेपर दिखाई दे रहा है? रेड कलर का है ना, रेड कलर का है. तो आप क्या कहेंगे? दिस इज रेड लिटमस पेपर, राइट? अनदर वन ब्लू. अब ब्लू को डिप किया, रेड हो गया. रेड तो रेड रह गया, लेकिन ब्लू किस में हो गया? रेड में. सो वी से रेड रिमेन रेड एंड ब्लू चेंजेस टू रेड. ब्लू किस में चेंज हो गया? रेड में. वी कॉल दिस वन, कैन यू सी दिस? अनदर सॉल्यूशन, वी हैव दिस ब्लू लिटमस पेपर. नाउ वी हैव अनदर वन दैट इज रेड लिटमस पेपर. अब रेड किस में चेंज हो गया? ब्लू में. सो नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व, कैसे देखा? क्या समझ में आता है यहाँ से? हियर द एसिड्स, जो भी सब्सटेंस, ये जो हमारा लिक्विड है, इट्स अ सब्सटेंस विच चेंजेस, जिसने चेंज किया. किसको चेंज किया? सिर्फ ब्लू को. ब्लू को किसने चेंज किया? रेड में. तो हम कहते हैं वो क्या बनेगा? हमारी एसिड्स बनेंगे. क्या बनेंगे? एसिड्स. एसिड्स आर द सब्सटेंस विच टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. ब्लू को किस में चेंज कर देता है? रेड में. व्हाट अबाउट दिस अनदर वन? ये देखो, बेसिस. बेसिस कौन से होते हैं? बेसिस द सब्सटेंस विच चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू. जब रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाए? ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, तो हम क्या देते हैं? वो क्या हो जाते हैं? हमारे बेसिस हो जाते हैं. ठीक है, सो दिस नेक्स्ट सॉल्यूशन दैट इज बेस. सो हियर blue litmus paper turns red on dipping in acids and red litmus paper turn blue by alkali, means base, right? Now here, what are natural indicators? We know natural substances. The indicator can be prepared from petunia, turmeric, granium and beetroot. Can you see? First word we use lichen, है ना, हमने लिटमस पेपर का यूज किया था. अब हम कह रहे हैं नेचुरल सब्सटेंसेस और भी हो सकते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और भी हो सकते हैं. ठीक है, कैसे? पेटूनिया हो सकता है, इट्स अ फ्लावर. टर्मरिक, हल्दी, आपको पता ही है. ठीक है, ये सारे के सारे जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको यूज कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई. क्या आइडेंटिफाई करेंगे? एसिड है या बेस है. नाउ हियर इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट. जो रेड कलर की कैबेज होती है ना, पर्पल होती है वैसे तो ये, बट रेड कलर की जो कैबेज होती है उससे हम क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं कि एसिड होगा या बेस, राइट? नाउ रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रिमेन रेड इन एसिडिक. क्या कहता है? ये रेड कलर रहता है किसमें? एसिड में. बट टर्न्स ब्लू टू ग्रीन. ब्लू से किस में चला गया? ग्रीन में चला गया. ठीक है, किसमें? किसमें? जब आपके पास क्या होगा? बेस होगा, राइट? ठीक है, now next is here
यस, द फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट आर यूजली ब्लू इन एसिड. जैसे अभी हमने कहा, ये क्या होगा, जो हमारा रेड कैबेज होगा वो रेड रहेगा, ठीक है, और ब्लू किसमें, ब्लू हो जाएगा, ब्लू टू ग्रीन हो जाएगा किसमें, बेसिक्स में, है ना. बेस जब आएगा तो ब्लू से किसमें चला गया, ग्रीन कलर में. बट अगर हम इस प्लांट के बारे में बात करें तो इट इज यूजली ब्लू इन एसिड बट टर्न पिंक. कौन से कलर का हो गया, पिंक कलर का हो गया. पिंक कलर का हो गया किसमें, बेस में, राइट. सो दिस इज द पीएच, यहाँ दिखाई देता है आपको, ठीक है. ये हमारा पीएच पेपर होता है, इसमें ये हमारे कलर्स होते हैं, डीप ब्लू, पर्पल, पिंक, और ये क्या हो जाता है, डीप पिंक हो जाता है जब 7 होता है, ठीक है. We will talk it on later. Many times we have noticed that yellow stain of curry on a white cloth, which is due to the presence of turmeric in curry, turn reddish brown. आपने देखा है आपके घर में जब आप खाना खाते हो या बाई चांस ऐसा होता है वो गिर जाता है ना आपकी शर्ट पे या कहीं पर, तो क्या होता है कि जब आपकी मम्मी उसको धोती हैं, उसको वॉश करती हैं, और सॉप जब उसके ऊपर स्क्रब किया जाता है, इट टर्न्स इनटू रेडिश ब्राउन. क्या हो जाता है वो, रेडिश ब्राउन में. दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट सॉप सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर. कैसा होता है, बेसिक इन नेचर, विच चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक. और ये क्या करता है, टर्मरिक के कलर को चेंज कर देता है, राइट. नाउ वी हैव सम मोर इंडिकेटर्स which are synthetic. Synthetic मैंने आपको बताया था, which can be synthesized, जो man made होता है. Olfactory, that is by the smell, and universal indicators also. So first of all we talk about synthetic indicator. What are synthetic indicators? क्या होते हैं synthetic indicators? Here we have artificially prepared. Let's take this two unknown solution in two different beaker. Here we drop something into this. This is phenolphthalein. क्या ले लिया मैंने, phenolphthalein. So from the phenolphthalein what we observe, क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या दिखाई दे रहा है, कैसे कलर का है, कलरलेस. लेकिन जैसे ही आप उसको क्या करते हो, ड्रॉप करते हो, तो ड्रॉप करने पर दोनों में ड्रॉप किया बिल्कुल, तो आप देखते हो कि एक में कलर चेंज हो गया, है ना. ये जो कलरलेस था वो क्या हो गया, पिंक कलर का हो गया. सो हियर व्हाट वी ऑब्जर्व, क्या हमें मिलेगा, ये मिलेगा एसिड, और दूसरा क्या होगा, बेस. तो एसिड में इट इज सेम एज इट इज, कलरलेस है तो कलरलेस ही रहेगा, ठीक है. अब आप कहोगे मैम फिनोफ्थलीन का कलर कैसा था, तो इट इज कलरलेस. कैसा था, कलरलेस. बट एसिड में एज इट इज रहा, बट बेस में क्या हो गया, वो चेंज हो गया. कैसे, एसिड से क्या हो गया, सॉरी, कलरलेस से क्या हो गया, पिंक कलर का. नाउ phenolphthalein in acid it's colorless, and in base it is pink color. So some chemical substance such as phenolphthalein, methyl orange, eosine are also indicator, they are synthetic indicator. Now I want to tell you about this methyl orange also. It's also very important. Methyl orange, if you will talk, so methyl orange, this is color is, here we say orange color. मिथाइल ऑरेंज का कलर जो होता है वो क्या होता है, ऑरेंज होता है. अब एसिड में क्या हो जाता है, ये रेड कलर का, और बेस में कैसा कलर हो जाता है इसका, येलो. इन बेस इट चेंज एंड इट इज येलो इन कलर. क्या मिल जाएगा, येलो, राइट. नाउ नेक्स्ट इज हियर methyl orange, phenolphthalein, these are the indicators. So let's take this some solution here, right. We are having HCl. रेड लिटमस में नो चेंज, ब्लू लिटमस किस में चेंज हो जाएगा, टर्न्स ब्लू, राइट. हियर कलरलेस, ब्लू टू रेड होना चाहिए ना, एसिड्स चेंज इट इनटू रेड, ठीक है. इसको ठीक कर लेना. नाउ फिनोफ्थलीन में कलरलेस, और यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज किस में चेंज हो जाएगा, रेड में. नाउ टेक H2SO4. H2SO4 नो चेंज, here turn blue. Now colorless, turns red. Next is here we have HNO3 nitric acid, right, colorless, red. CH3 acetic acid, no change, colorless, turns orange. Orange color का अभी बात करी थी हमने, ठीक है. Now next NaOH, it's a base, turns blue. यहाँ पर ना रेड आएगा, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, turns red, ठीक है. ब्लू टू रेड हमने अभी याद किया था ना. एसिड्स change blue litmus to red, right. Now here next is no change, turns pink, and here turns yellow. Second CaOH whole twice. याद करो इसका नाम क्या था, है ना, याद कीजिए और मुझे बताइए. Turns blue. Now no change, turns pink,
and turns yellow. KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. बोलो कैसा है ये? OH दिखाई दे रहा है, so it's a base. Base क्या होगा? Red changes to blue. Now here we see no change, turns pink and turns yellow. MgOH whole twice, magnesium hydroxide, turns blue. Here no change, turn pink and turn yellow. Next is NH4OH, that is here turns blue, no change, turn pink and turn yellow, right? So from here we say कि जब हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन होता है तो वी कैन easily check them, right? Now we have some more indicators. Here we are using onion, right? So onion, how it help? Onion के slice किए and then what we are doing here, we know the smell of onion, right? हमें पता है ऑनियन की स्मेल कैसे होती है. सो व्हाट पंजेंट स्मेल ऑनियन हैज, बहुत अजीब सी स्मेल होती है ना, गंदी स्मेल होती है. तो हमने क्या किया, उनको सॉल्यूशंस में डिप किया. नाउ हियर जो फर्स्ट सॉल्यूशन था उसमें जो स्मेल होगी वो क्या होगी, ऑफ हो जाएगी. मीन्स इसमें ऑनियन की स्मेल रहेगी फर्स्ट में, और यहाँ पर जो ऑनियन की स्मेल होगी वो क्या हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी. सो फ्रॉम वेयर हियर व्हाट वी ऑब्जर्व, हमें यहाँ पर क्या दिखाई देता है, द फर्स्ट इन विच द ओनियन स्मेल रिमेन सेम, जिसमें ओनियन की स्मेल सेम रही उसको हम क्या दे देते हैं, एसिड. और जिसमें ऐसा हुआ कि ओनियन की स्मेल खत्म हो गई उसको क्या बोल देते हैं, बेस, राइट? सो हियर वी से द indicators which are useful, which are uses to find the acid and base by their smell. कैसे चेक करें हम, स्मेल से, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, olfactory indicator. What we called it, olfactory indicator, right? So here example, onion, order remains same, and here in base order goes off, right? So here are some more orders, है ना, बहुत सारे और भी ऐसे indicators होते हैं. onion, next is clove, vanilla essence. ठीक है, तो clove में क्या होगा, I want to tell you that clove में क्या करता है, बिल्कुल सेम एज इट इज. जो एसिड्स होते हैं उसमें क्या रहेगा, स्मेल आएगी, और जो बेस होगा उसमें क्या होगा, इसका जो स्मेल होगी, ऑर्डर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा. क्लियर? ठीक है. नाउ हियर सेम एज विद वेनिला में हम भी ऐसे ही कहेंगे, ठीक है, बट इट्स लूजेज स्मेल इन बेसिस में क्या करता है, स्मेल को क्या करता है, खत्म कर देता है. और बाकी एसिड में इसका जो कलर होता है, सॉरी जो ऑर्डर होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है. ठीक है. नाउ हियर यूकेलिप्टस ऑल्सो, नीलगिरी, राइट? हियर इन एसिड्स, अभी देखो सब में सेम ही है. एसिड्स में इन सब का ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा, इनकी स्मेल सेम रहेगी. बट बेस में हम ये देखेंगे कि इनकी जो स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी, वेनिश हो जाएगी. नाउ वी विल टॉक ऑन दिस यूनिवर्सल इंडिकेटर. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर? क्या होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर? मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर इज नोन एज यूनिवर्सल इंडिकेटर. ठीक है, बहुत सारे इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर. सो हियर वी हैव दिस. In this, how we observe that this is acid or base? By their color. Here you can see. बाकी बाद में बात करेंगे हम इसके बारे में, बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा. यहाँ हम कहते हैं कि अगर कलर ग्रीन टू रेड जा रहा है तो दे आर एसिडिक, मोर एसिडिक हो जाते हैं. यहाँ पर हम कह रहे हैं ये मोर बेस हो जाते हैं, और बीच वाला जो होता है वो क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है, राइट? So universal indicator not only tell us whether the given solution is acid or base, but we can also judge how strong an acid are. आप ये तो चेक कर ही पाओगे कि गिवन एसिड है या बेस है, साथ में ये भी पता लगा पाओगे कि ये जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक है. जैसे आपने कहा लेमन, है ना, लेमन में सिट्रिक एसिड था, अब उसको तो आप टेस्ट कर रहे हो मैम, लेकिन HCl को क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, राइट? सो हियर this is all about today. You just revise it. Thank you. Bye bye.